Greetings from Jeffersonville, Indiana. और जेफरसनविल इंडियाना की तरफ से आप सबको सलाम। This is Brother Reinhard Shamoun from Pakistan. ये भाई रेनहार्ड हैं पाकिस्तान से। And it's Saturday, और आज का दिन जो है हफ्ते का दिन है April 26th, अप्रैल 26, 2025. 2025। Now here's the Eagles Gathering Together letter from Brother Joseph Branham. अब उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। ये खत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो कि भाई जोसेफ ब्रैनम की तरफ से है। Dear precious friends, है अजीज दोस्तों, My beloved, my darlings of the gospel, my begotten children unto God, मेरे प्यारे, तुम जो इस अंजील के डार्लिंग्स हो और खुदा के इकलौते बच्चे हो। what a wonderful weekend we had with our Lord. It was like nothing else, just spending time with Him, speaking to Him, hearing His voice, worshiping Him, thanking Him, and telling Him how much we love Him. क्या ही शानदार हफ्ता हमने अपने खुदावन के साथ गुजारा है। बस उसके साथ वक्त गुजारना और उससे बातें करना, उसकी आवाज सुनना, उसकी प्रस्तुति करना, उसका शुक्र करना और उसे बताना कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। What an honor it is to be living in this day and being a part of Scripture being fulfilled. How can mortal words express all that is in our heart? As the prophet said, it's not me. Amen. There is just something deep inside, pushing and bubbling in me, an artesian and bubbling up in me, an artesian well of the Holy Spirit. It is the bride making herself ready for the bridegroom. हमारे लिए इस जमाना में जीना और उसके मुजस्सम कलाम का हिस्सा होना कितनी एजाज की बात है। कैसे हमारे फानी लफ्ज इसका इजहार कर सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है। जैसा कि नबी ने कहा, ये मैं नहीं हूँ, मुझ में गहरे तौर पे कोई चीज है जो मुझे अंदर से धक्का मारती है और हमेशा मेरे अंदर उछलती रहती है। ये रूह उसका फवारिक कुआं है, ये दुल्हन है जो अपने आप को दुल्हा के लिए तैयार कर रही है। How excited a bride gets right before her wedding. Her heart starts beating so rapidly as the last few seconds pass. She knows the time has finally arrived. I have made myself ready. He is coming for me. We will now be one. कैसे एक दुल्हन अपनी शादी से पहले पुरजोश होती है और जैसे जैसे सेकंड्स गुजरते हैं और दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वो जानती है कि आखिरकार वो वक्त आ गया है, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, अब वो मेरे लिए आ रहा है, अब हम एक हो जाएंगे। We are truly living in the last closing moments of time. The bride will soon be raptured and called to our honeymoon supper. He is taking us to new heights. There is no more question, no more wandering. We are the bride. हम यकीनन वक्त के इख्तिताम होने के आखिरी लम्हों में रह रहे हैं। दुल्हन बहुत ही जल्दी उठा ली जाएगी और अपने हनीमून के खाने पर बुला ली जाएगी। बस वो हमें नई बुलंदियों पर लेकर जा रहा है। मजीद और कोई सवाल नहीं है और ना ही मजीद कुछ और सोचना है, बस हम दुल्हन ही हैं। And he is not done yet. He still wants to bless and encourage his beloved chosen bride. How he loves to encourage her and tell her how much he loves her, how proud he is of her. बस उसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी अपनी प्यारी चुनी हुई दुल्हन की हौसला अफजाई करता है और उसे बरकत देता है। कैसे इसे हमारी हौसला अफजाई करना पसंद है और हमें बताना कि वो हमसे कितना प्यार करता है। ओ, कैसे वो अपनी दुल्हन से कितना खुश है। He has yet another very special revelation to give her. When there are so many voices in the world rejecting playing the tapes, he once again wants to reassure the bride they are in his perfect will and his provided way. Amen. अभी भी उसके पास एक बहुत खास मुकाशवा है जो उसने हमें दिया है। जहां दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं जो टेप्स को प्ले करना रद्द कर रही हैं, बस वो अपनी दुल्हन की ये यकीन दहानी करना चाहता है कि हम उसकी कामिल मर्जी में हैं और उसके मुहैया करदा रास्ते पर चल रहे हैं। His program has always been rejected. His bride has always been persecuted. The people are always wanting their own way, their idea.
They wanted different leader to them. But God sent one leader Amen. to lead his bride. Himself, the Holy Spirit. And the Holy Spirit of this day, as in all other days, is God's prophet. Amen. उसका प्रोग्राम हमेशा से ही रद्द किया गया है। उसकी दुल्हन को हमेशा से ही सताया गया है। लोगों ने हमेशा अपना ही कोई रास्ता और अपना ही मंसूबा चाहा है। वो एक मुख्तलिफ लीडर को चाहते हैं जो उनकी रहनुमाई करे, लेकिन खुदा ने दुल्हन की रहनुमाई के लिए सिर्फ एक ही लीडर को भेजा है और वो रूल कुस की सूरत में खुद है। और वो रूल कुस आज के जमाने में और बाकी दीगर जमानों में खुदा के नबी रहे हैं। They have always wanted men to lead them. In Samuel's day, God said they were rejecting him by not wanting Samuel to lead them. It seems strange, as Samuel was a man too, but the difference was Samuel Amen. was the man God chose to lead them. Amen. It was not Samuel, it was Amen. God using Samuel. Amen. He was God's chosen voice and man to lead them, but they wanted other voices. बस उन्होंने हमेशा चाहा है कि इंसान उनकी रहनुमाई करे, बिल्कुल जैसा सैमुअल के दौर में हुआ। खुदा ने कहा वो उसे इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सैमुअल उनकी रहनुमाई करे। ये बहुत अजीब था क्योंकि सैमुअल भी एक आम आदमी ही था, लेकिन फर्क ये था कि सैमुअल वो शख्स था जिसे खुदा ने रहनुमाई के लिए चुना है। बस वो सैमुअल नहीं था, वो खुदा था जो सैमुअल को इस्तेमाल कर रहा था। वही खुदा की चुनी हुई आवाज थी और वही वो शख्स था जिसे लोगों की रहनुमाई के लिए चुना गया था, लेकिन वो लोग मुख्तलिफ आवाजों को चाहते थे। Saul knew the people feared Samuel, so he had to proclaim Saul and Samuel. He had to scare the people so they would follow him. Truly, he was called. Amen. Truly, he had been anointed by Samuel to be their king. Wow. But God still had a provided way. Amen. And the prophet he chose to lead them, even to lead Saul. God spoke to his prophet and told Saul what to do. When Saul decided he was anointed too and didn't want to hear just the prophet, God took his kingdom away. Amen. साउल जानता था कि लोग सैमुअल से डरते हैं, इसलिए उसे ऐलान करना पड़ा। पर साउल और सैमुअल उसे लोगों को डराना पड़ा ताकि वो उसकी पैरवी करे। यकीनन वो बुलाया गया था, यकीनन उसे सैमुअल ने बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन तो भी वो खुदा का मुहैया करता रास्ता था और एक नबी था जिसे उसने लोगों की रहनुमाई के लिए चुना था। हत्ता के साउल की रहनुमाई के लिए भी खुदा ने अपने नबी से बात की और बताया कि साउल को क्या करना है। बस जब साउल ने ये फैसला कर लिया कि वो मसा किया गया है और उसने नबी की बात सुनने से इनकार कर दिया है, तब खुदा ने उससे उसकी सल्तनत को छीन लिया। So then, when they did that, when the great defeat come, then Saul cut up 2 great ox and sent them to all the people. And I wished you would notice here, when Saul sent the pieces of the ox to all Israel and said, let every man that will not follow Samuel and Saul, let his ox be as this. Do you see how deceitful he tried to represent himself with the man of God? How un-Christian it was. The fear of the people was because of Samuel. But Saul got them all to follow him because that the people feared Samuel. Let them come after Samuel and Saul. और बस जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको बड़ी शिकस्त हासिल हुई। तब साउल ने बैलों की जोड़ी को लिया और उन्हें काट कर तमाम लोगों के पास बेच दिया। बस मैं चाहूंगा कि आप यह तवज्जो दें, जब साउल ने बैलों की जोड़ी को काट कर पूरे इजराइल में बेचा और कहा कि हर वो शख्स जो सैमुअल और साउल की पैरवी नहीं करेगा उसके बैलों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। क्या आपने देखा कि किस तरह धोखे से उसने अपनी नुमाइंदगी खुदा के खादम के साथ करने की कोशिश की? ये कितना गहरा मसीही तरीका है। लोगों के अंदर खौफ सैमुअल की वजह से था, लेकिन साउल ने अपने पीछे उनको सबको लगा लिया क्योंकि वो सैमुअल से डरते थे। बस हर एक शख्स सैमुअल और साउल की पैरवी करेगा।
One day, Saul was so troubled, he couldn't get an answer from God. He couldn't get comfort. He wanted answers. He knew where he had to go to get the answer he wanted. There was only one place. God's prophet, Samuel. He had passed over, but he was still the voice of God, even in paradise. Amen. एक दिन साउल बहुत परेशान था। उसे खुदा से जवाब नहीं मिल पा रहा था। बस वो बेआराम था। वो जवाब चाहता था और इसे मालूम था कि इसके जवाबात के लिए उसे किसके पास जाना है और कहाँ जाना है। बस एक ही जगह थी और वो खुदा का नबी सैमुएल था। लेकिन वो गुजर चुका था, लेकिन तो भी वो खुदा की आवाज थी, हत्ता के फिरदौस में भी। Father wanted his bride to know who he chose to lead his bride Amen. in the last day. So he took his mighty angel beyond the curtain of time to once again tell us, comfort us, Amen. and encourages us that we are in his perfect and provided will. बाप चाहता है कि वो अपनी दुल्हन को बताए कि उसने अपनी दुल्हन की रहनुमाई के लिए इस आखिरी जमाना में किसको चुना है। बस वो अपने अजीम फरिश्ता को वक्त के पर्दा के पार ले गया ताकि हमें वो फिर से बता सके, हमें आराम दे सके और हमारी हौसला अफजाई कर सके कि हम उसकी कामिल और मुहैया करदा मर्जी में हैं। Amen. Listen very carefully to all the prophet is saying. इस सब को बड़े गौर से सुने जो नबी फरमा रहा है। I would not want you to repeat this. This is before my church or my sheep that I am pastoring. अब मैं नहीं चाहता कि आप इसे दोबारा दोहराएं। ये मेरे चर्च के लिए है, ये मेरी भेड़ों के लिए है जिनका मैं पास्टर हूँ। Before he tells us anything, he first wants us to know this is only for us, His church, his church, Amen. his sheep, the ones he is pastoring. Thus, if you can't say, Brother Branham is my pastor, I've said it before, but there is simply no need to read any further. Amen. This is not for you. Plus, he didn't want us to even repeat it to no one but to them who believes and says, Brother Branham is my pastor. Amen. इससे पहले कि वो हमें बताए, वो चाहता है कि हम जान लें कि ये सिर्फ हमारे लिए ही है। ये सिर्फ उसकी कलीसिया, उसकी भेड़ों, ये उनके लिए है जिनका वो पास्टर है। बस अगर आप ये नहीं कह सकते कि ब्रदर ब्रैनम मेरा पास्टर है, फिर मैंने पहले भी ये कहा है, मजीद आपको ये लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। हालांकि उसने ये कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप इसे दोबारा दोहराएं, सिवाय उनके जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि ब्रदर ब्रैनम मेरा पास्टर है। Right there is our answer to the question. We get so much criticism for saying, Brother Branham is our pastor. That's them tape people. They are correct. He is and we are. ठीक है, हमारे पास उस सवाल का जवाब है जिस पर लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। भाई ब्रैनम हमारा पास्टर है और ये सिर्फ टेप वाले लोगों के लिए है। ठीक ऐसा ही है और वो भी दुरुस्त है और हम भी। Please, don't get upset with me. I'm not saying these things to upset anyone. That would be wrong. But it's what he is saying to the bride. I'm not putting my interpretation to it. He's telling it plainly. God's word needs no interpretation. Amen. बस मेरे साथ नाराज ना हो। मैं ये बातें किसी को नाराज करने के लिए नहीं कह रहा, ये बहुत गलत होगा, लेकिन ये वो बात है जो वो अपनी दुल्हन से कह रहा है। मैं इस बात का अपने आप से कोई तर्जुमा नहीं कर रहा, बस वो इसे सादगी से बता रहा है। खुदा के कलाम को किसी तर्जुमे की जरूरत नहीं है। Whether it was I was in this body or out, whether it was a translation, it wasn't like any vision I ever had. आया कि वो क्या था, मैं इस बदन में था या इससे बाहर, आया कि ये कोई तर्जुमा था, बस ये बाकी रोया से बहुत मुख्तलिफ थी जो मैंने आज तक देखी हैं। Now he tells us this was not like any vision he had ever had. He went someplace he had never been. Amen. It was even greater than any vision he had ever saw. He wasn't dreaming. He saw his body on the bed. He was there. अब वो हमें बताता है
कि बाकी रोया की तरह ये रोया बिल्कुल भी नहीं थी कि जितनी उसने देखी है। बस वो एक ऐसी जगह पर था जहां आज तक वो कभी नहीं गया। उसने जितनी भी रोयाएं देखी हैं, ये वाली सबसे अजीम थी। बस वो कोई ख्वाब नहीं था। उसने अपने बदन को बेड पर देखा था। बस वो ऊपर आसमान में था। The bride of Jesus Christ. Let that sink in real good. It was the bride of Jesus Christ on the other side, present tense, that come running up to him, screaming and grabbing him, throwing their arms around him and saying, "Oh, our precious brother." यीशु मसीह की दुल्हन, बस इस बात को अच्छी तरह जज्ब कर लें। ठीक उस पार यीशु मसीह की दुल्हन थी, प्रेजेंट टेंस। लोग उसके पास दौड़ते हुए हैं, वो चिल्ला रहे थे और उसे पकड़ रहे थे और अपने हाथ उसके कंधों पर रख रहे थे। ओ हमारे बेशकीमत भाई। He was there. He could feel it. He could hear them. They were talking to him. He stopped and looked. He was young. He looked back at his old body, lying there with his hands behind his head. वो वहां था, वो इसे महसूस कर सकता था, वो उन्हें सुन पा रहा था। लोग उसे बातें कर रहे थे। बस वो रुक गया और उसने देखा कि वो जवान हो गया है। उसने मुड़कर अपने पुराने बदन को देखा, जहां उसने अपने हाथ अपने सर के पीछे रखे हुए थे। Now, we have established he was there, and it was the bride of Jesus Christ he was seeing. Amen. Now let's hear what a voice from above was saying to him. अब जबकि हमें मालूम हो गया है कि वो वहां था और वो यीशु मसीह की दुल्हन ही थी जिसे वो देख रहा था, अब आए फिर सुनते हैं कि ऊपर से आवाज उसे क्या बात कर रही थी। And then that voice that was speaking from above me said, "You know, it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people." और तब वो आवाज जो ऊपर से मुझसे बात कर रही थी, उसने कहा, तू जानता है कि ये बाइबल में लिखा है कि नबी अपने लोगों के साथ इकट्ठे थे। God was not only showing and encouraging his prophet, but there was much more to it. He would come back and tell us not only where we were going and what it would be like, but to tell us we are in his perfect will by pressing play, and that's how you get to where the bride is. खुदा ये सब सिर्फ नबी की हौसला अफजाई करने के लिए नहीं दिखा रहा था, लेकिन इस बात में और भी बहुत कुछ था। बस उसने वापस आकर हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं और वहाँ सब कैसा होगा, बल्कि उसने हमें ये भी बताया कि प्रेस प्ले का वसीला हम उसकी कामिल मर्जी में हैं, और बस इसी से हमें मालूम हुआ है कि हम उसकी दुल्हन हैं। Brother Branham said he wanted to see Jesus so bad, but they said to him, ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि वो यीशु को बहुत शिद्दत से देखना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे कहा, They said, "Now he's just a little higher, right up that way." Said, "Someday he will come to you." See? अब वो यहाँ से थोड़ा और ऊपर है, बिल्कुल ठीक उस जगह। कहा, बस किसी दिन वो तेरे पास जरूर आएगा। They proceeded to tell him who he was. बस उसने मजीद उसे बताना शुरू किया कि वो कौन है। Said, "You were sent for a leader, and God will come, and when He does, He'll judge you according to what you taught them. First, whether they go in or not, we'll go in according to your teaching." बस तुझे बतौर रहनुमा भेजा गया है, और जब खुदा आएगा, बस जब वो आएगा तो वो तेरी अदालत उसके मुताबिक करेगा कि तूने क्या तालीम दी है। पहली बात, आया वो अंदर जाए या ना जाए, लेकिन हम तेरी तालीम के वसीला जरूर अंदर जाएंगे। Who was sent as a leader? We are going to be judged according to what who taught us. We will enter into heaven according to whose teaching? बस किससे बतौर रहनुमा भेजा गया है, हमारी अदालत किस तालीम के मुताबिक की जाएगी, और बस हम किस शख्स की तालीम के वसीला आसमान में दाखिल हो पाएंगे। One can say, I teach my people just what Brother Branham said. Amen.
You should, and I believe some do. But don't make it Brother Branham and I. बस एक कह सकता है, मैं अपने लोगों को वही सिखाता हूँ जैसा भाई ब्रैनम ने कहा है। आमीन, आपको ऐसा करना चाहिए और मुझे यकीन है बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन इसे ये मत बनाएं भाई ब्रैनम और मैं। Let's read on as he wants to make sure we understand more clearly. आए इसे पढ़ते हैं क्योंकि वो चाहता है कि हम इसे बिल्कुल ठीक तरीके से समझ जाएं। And then people screamed and said, "We know that, and we know we're going with you someday back to earth." Said Jesus will come, and you'll be judged according to the word that you preached us. बस वो तमाम लोग चिल्ला उठे और कहा, बस हम ये जानते हैं और हम ये जानते हैं कि हम तेरे साथ अंदर जाएंगे और किसी रोज दोबारा जमीन पर आएंगे। कहा, बस यीशु आएगा और हमारी अदालत उस कलाम के मुताबिक करेगा जिसकी मुनादी तूने की है। We'll be judged by the word he preached us. Thus, judgment comes from what the voice of God said on the tapes. How can anyone say the voice on the tapes is not the most important voice you can hear? बस हमारी अदालत उस कलाम के वसीला होगी जिसकी मुनादी उसने की है। अदालत खुदा की आवाज से आती है जो कि टेप्स पर है। फिर कोई कैसे कह सकता है कि टेप्स पर जो आवाज है वो सबसे खास आवाज नहीं है जो कि आप सुन सकते हैं। And then, if you are accepted at that time, which you will be, और फिर अगर आप उस वक्त कबूल किए जाएंगे जो कि आप यकीनन किए जाएंगे। Are you ready? This will clinch the nail on what is the perfect will of the Lord for the bride of Jesus Christ. The bride is telling the prophet what he will do. No one else, not a group, not another pastor, God's prophet, William Marion Branham. क्या आप तैयार हैं? बस ये उस बात पर कील लगा देगी कि यीशु मसीह की दुल्हन के लिए खुदावंद की कामिल मर्जी क्या है। बस दुल्हन नबी को बता रही है कि वो क्या करेगी। कोई और नहीं, ना ही कोई क्रो और ना ही कोई और पास्टर, लेकिन सिर्फ एक ही खुदा का नबी, विलियम मैरियन ब्रैनम। and said, "Then you will present us to him as your trophies of your ministry." बस तब आप हमें बतौर अपनी खिदमत की ट्रॉफी उसे पेश करेंगे। Who is going to present us to the Lord Jesus? The days of just listening to the prophet are over. Brother Branham never said to play the tapes. बस वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश करेगा। क्या नबी को सुनने के दिन खत्म हो गए हैं? क्या भाई ब्रैनम ने कहा है कि कभी टेप्स नहीं प्ले करना? The bride is screaming and saying, if you want to be the bride, you better press play. बस दुल्हन चिल्ला कर कह रही है, अगर तुम दुल्हन बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम प्रेस प्ले करो। Still not convinced? Well, there's even more. अभी भी ये काफी नहीं है? ठीक है, बस कुछ और भी है। Said you will guide us to him, and all together we'll go back to the earth to live forever. कहा, तू हमारी उस तक रहनुमाई करेगा और हम सब इकट्ठे होकर दोबारा जमीन पर जाएंगे ताकि हमेशा के लिए जी सकें। Who is to guide us to him? Who is leading the bride? The bride is telling him that he will guide the bride to him. Then we'll go back to earth to live forever. बस वो कौन है जो हमारी रहनुमाई उस तक करेगा? कौन दुल्हन की रहनुमाई करेगा? बस दुल्हन उसे कह रही है कि वो ही दुल्हन की रहनुमाई उस तक करेगा, फिर हम सब दोबारा जमीन पर जाएंगे और हमेशा के लिए जिएंगे। If there is any revelation in you at all, if you claim you believe this message, I pray that God will reveal to you that you must put His voice, the tapes,
first. Pastors, put the prophet back into your pulpits. The tapes are the most important voice you must hear as you're going to be judged by that voice. बस अगर इस सारी बात में कोई मुकाशफा है और अगर आप ये दावा करते हैं कि आप इस मैसेज पर ईमान रखते हैं, तो फिर मैं दुआ करूंगा कि खुदा इस बात को आप पर अश्कारा करे कि आपको इसकी आवाज टेप्स पहले रखनी है। पास्टर्स, नबी को वापस पुलपट पर ले आओ, क्योंकि सबसे खास आवाज सिर्फ टेप्स में ही है। बस आपको इसे सुनना जरूर है, क्योंकि आपकी अदालत इसी आवाज के वसीला की जाएगी। According to the word, we are in his perfect and provided will for our day by listening to the voice of God on the tapes. बस कलाम के मुताबिक हम ठीक उसकी कामिल मर्जी में हैं और उस मुहैया करते रास्ते पर हैं जो उसने हमें टेप्स के वसीला खुदा की आवाज सुनने को दी है। If God has opened your eyes to the true revelation to his word, I invite you to join us Sunday at 12 p.m. Jeffersonville time as we hear 60-0515M, The Rejected King. बस अगर खुदा ने आपकी आंखों को इस कलाम के हकीकी मुकाशफे के लिए खोला है, तो फिर मैं आपको दावत देता हूँ इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर, जबकि हम सुनते हैं 60-0515M, एक रद्द किया हुआ बादशाह। Brother Joseph Branham. भाई जोसेफ ब्रैनम। Until next time, God bless you. और अगली बार तक के लिए खुदा आपको बरकत दे और शलोम।